Good morning, students. But today we are going to discuss the qualities of a good questionnaire. Previously, we have done two methods of collecting primary data. One is mail questionnaire method, and another one is questionnaire sent through enumerator. So the success of both the methods depends upon the questionnaire. What is a questionnaire? It is a form containing set of questions related to the enquiry. So बेटे, अगर आपको यही नहीं मालूम क्वेश्चन आयर कैसे बनाना है या एक गुड क्वेश्चन आयर कैसे बनता है, तो आप इस मेथड को अडॉप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज द बेस ऑफ दिस मेथड इज टू प्रिपेयर अ क्वेश्चन आयर and the questionnaire has to be prepared in such a way that it serves our purpose. Our purpose is to collect original data, so we need to have a good questionnaire so that we do not get the problem of non-response from the students, or we get incomplete forms from the informant. So in order to overcome all these shortcomings of this method, we should know what are the qualities of a good questionnaire. Okay, just imagine I have given you one project. The project relates to collection of data, and I told you to collect data, or you yourself decided that a questionnaire method would be best method for this, for the collection of this data, because your sphere of inquiry is large. You have to collect data from all the 10 pass out students of CBSE schools of India. So you felt that questionnaire method would be the best method. Okay. Now the first first step of this method is to prepare a questionnaire. So once you sit down to prepare a questionnaire, तो आपके माइंड में आ ही नहीं रहा अच्छा क्या क्वेश्चंस पूछे, अच्छा कैसे बनाए क्वेश्चनायर। आपने एकदम से 10 पेजेस का क्वेश्चनायर बना दिया, ठीक है, और आपने वो भेज दिया रिस्पोंडेंट्स को, और आपने कि आपको रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, आपको कोई वापस ही नहीं भेज रहा है, ठीक है। या आपने इस तरह के क्वेश्चंस डाल दिए जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, या आपने अपनी वोकैबुलरी शो करने के लिए एक इस तरह से एक डिफिकल्ट लैंग्वेज में क्वेश्चनायर बना दिया. So which means you're not familiar how to prepare a good questionnaire. So let's discuss what are the qualities of a good questionnaire. These are certain pointers which you have to keep in mind while framing a questionnaire, so that you do not face the problem of non-response or incomplete questionnaire. Firstly, better limited number of questions should be there. Just like I told you कि आपने 5 पेजेस का क्वेश्चनायर बना दिया जिसमें 20-25 क्वेश्चंस हैं, तो उस केस में स्टूडेंट डर जाएगा बेटे, वो नहीं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस फिल करके वापस भेजेगा, वो एक सेपरेट रख देगा, ठीक है। बहुत सारे टेंडेंसी ऐसी होती है यंगर जनरेशन की, वो ज्यादा बड़ा काम देख के डर जाते हैं. सो यू इन ऑर्डर टू गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स, the questionnaire should contain limited number of questions. ठीक है, ये नहीं कि 2-4 क्वेश्चंस में आपको एक्चुअली डेटा कलेक्ट करना है, तो आपको रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछने ही पड़ेंगे कंप्लीट डेटा कलेक्ट करने के लिए. बट स्किप ओवर द अनडिजायर्ड क्वेश्चंस. कीप योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस limited, right? Say 10, 12, maximum 15 to 20 questions should be there. It's not hard and fast rule. It very much depends upon the inquiry, but maximum 15 questions, 15, 20. अगर आप 30-35 questions का क्वेश्चन आए बना दोगे, तो you won't be getting the problem of you won't be getting the response from the respondents. ठीक है. So keeping next quality better, the question should be in simple and ल्यूसिड लैंग्वेज. सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, बहुत टफ लैंग्वेज नहीं यूज करनी, ठीक है. इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करो that respondent is able to understand in a single go. Lucid also means very simple language. ऐसी सिंगल गो में आपको फ्लो में लिखी हुई लैंग्वेज है, समझ आ रही है, ठीक है. नो एम्बिग्विटी शुड बी देयर. एम्बिग्विटी का मतलब होता है डबल मीनिंग, ठीक है. कोई एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको, एक स्टूडेंट ने एक तरह से इंटरप्रेट किया, दूसरे ने अलग तरह से इंटरप्रेट किया, सो दैट इज
ambiguous questions. No ambiguity should be there. The question should be unambiguous. ठीक है, डबल मीनिंग नहीं निकलना चाहिए उसमें से। ऐसा हर एक कोई इसको एक ही वे में इंटरप्रेट करे, इस तरह के क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको लिखनी चाहिए। देन बेटे नेक्स्ट क्वालिटी इज दैट क्वेश्चन शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर। एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चंस का, टू एंड फ्रो होने चाहिए क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक रिलेटेड क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो विच आर रिलेटेड टू वन टॉपिक, से डू यू ओन ए कार, इफ यस what is the brand of your car, what is the make of your car, which year you bought this car, ठीक है। इसके बाद आपने कोई और 4-5 क्वेश्चन अलग से पूछ लिए। 6th क्वेश्चन में आप जाके पूछ रहे हो डू यू हैव इंश्योरेंस ऑफ दिस कार, डू यू गेट योर कार सर्विस्ड रेगुलरली और नॉट, ठीक है। व्हाट इज द इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर ऑफ योर कार। तो बेटे यहाँ पर आपने कार के क्वेश्चन के बारे में जब क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिया, आपने आरसी निकाल ली, उससे देख के आपने ये क्वेश्चंस लिख दिए। उसके बाद आपने आरसी वगैरह रख दी, उसके बाद फिर आपने बाकी क्वेश्चंस के आंसर देने शुरू कर दिए। फिर देखा फिर कार से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। नाउ यू विल गेट इरिटेटेड। आप फिर कार के कागज निकालोगे, डॉक्यूमेंट्स निकालोगे, वहां से आप देखोगे इंश्योरेंस है कि नहीं है, अगर है तो उसके इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर आपको बताना है, ठीक है। सो ये बेटे टू एंड फ्रो नहीं है, दिस इज नॉट ए गुड क्वेश्चन आयर। एक अच्छा क्वेश्चन आयर वही होता है जिसमें प्रॉपर ऑर्डर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी टू एंड फ्रो क्वेश्चंस आर देयर, राइट। नाउ let us proceed to the next quality of a questionnaire. It should not contain any undesirable questions. Undesirable questions बेटे personal questions, ऐसे कोई questions ना पूछे जिससे informant offend हो जाए, ठीक है, नाराज हो जाए, आपसे गुस्सा हो जाए। वो क्या करेगा, वो आपके क्वेश्चन आए को fill in करके वापस नहीं भेजेगा। So ask only desirable questions which do not offend the sentiments of the respondents. Do not ask questions which you won't be, liking to answer. Then no controversial questions should be there. ऐसे questions कोई भी जैसे religion based questions हैं, ठीक है, आप या political based questions हैं, अगर वो avoid हो सकते हैं तो उनको avoid करिए। ऐसे controversial questions के answers generally respondents नहीं देना चाहते, ठीक है। Next, बेटे no calculation based questions should be there. As far as possible, avoid calculative questions. Calculations अगर required है तो आप खुद कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि आपसे ये पूछने की बजाय कि आपके प्री बोर्ड 1 से लेके प्री बोर्ड 2 तक, ठीक है, कितनी इम्प्रूवमेंट हुई, या आप जो बोर्ड का रिजल्ट आया है, ठीक है, जो हम वेटेज बेस्ड आपका एक सिस्टम फॉलो करें जैसे सीबीएसई ने कहा है उस तरह से, तो प्री बोर्ड 1 से प्री बोर्ड 2 तक, प्री बोर्ड 2 से बोर्ड तक आपके कितने परसेंटेज चेंज आया। Instead of asking this question, you ask what were your marks in pre board 1, what were your marks in pre board 2, and what were your marks in pre-board or board examination. You just ask their marks and find out the percentage yourself. This does not involve any calculations, right? You know your total marks, so you will be able to answer it gladly. But if you are asked to calculate the percentage change, then you will, have to convert it into percentage, convert this into percentage. Then you find the change in percentage. So that's going to be really difficult for you. You might, avoid this question. So आप इसको fill ही नहीं करोगे तो फिर purpose solve नहीं होगा. So as far as possible, calculative questions should be avoided. Then बेटे, cross verification. What do you mean by this term? See, you are sending the questionnaire by post. You have just written your questions and you are sending it to informant. Thereafter, you are in no
direct contact with the informant himself is filling in and sending you back, right? So you have to have faith on the informant कि ये जो information दे रहा है वो accurate है. But then सिर्फ फेथ के ऊपर तो बेटे आपको मालूम ही है, आपके पास भी कुछ ऐसा आएगा और कोई प्रूफ नहीं मांगेगा कि कितने प्री बोर्ड 1 में मार्क्स थे, आप झूठ बोल दोगे. ठीक है, यू आर ऑलवेज अशेम्ड कि हाय मेरे तो बहुत कम मार्क्स आए थे, तो मैं नहीं बताता कि मेरे 40% आए थे, आपने 50% लिख के भेज दिए. ठीक, तो in order to see whether the respondent is giving the correct information or not, we can put certain questions which may cross verify the answers, जहां जिससे क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकती है. ठीक है, जैसे कि बेटे आपकी पॉकेट मनी अलाउंस हमने पूछा, आपने झूठ में बोल दिया 5,000 रुपए. ठीक है, तो उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए कि आप किसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर करते हो, आप गिफ्ट कितना देते हो, आप रिचार्ज कितने का कराते हो, पेट्रोल कितने का करवाते हो. ठीक है, फिर थोड़े देर बाद जाके पूछ लिया व्हाट आर योर सेविंग्स. सो हमने टोटल करके देख लिया आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, अगर ये 5,000 के बराबर है तो यू माइट नॉट बी लाइंग. सी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा इन्वेस्टिगेटर कि क्रॉस वेरीफाई कर सके. बाकी कितने ये रिस्पोंडेंट की स्मार्टनेस भी होती है, वो फिर भी झूठ बोल सकता है, लेकिन हमने पूरी कोशिश करनी है कि हम कुछ ऐसा क्वेश्चन डाल दें जिससे क्रॉस वेरीफाई हो जाए कि वो कोई इंफॉर्मेशन झूठ तो नहीं दे रहा, राइट? Then better, a request for return has also to be put in the questionnaire. At the end of the questionnaire, you write down a note stating that you are requested to send this, to fill in this in questionnaire, okay, and send it back to us. This is going to play a very important role in say framing a new education policy. इस तरह से अगर आप एक रिक्वेस्ट करोगे तो एक इंफॉर्मेंट के माइंड पर ये इंप्रेशन हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा ये जो रिस्पॉन्स है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फ्रेम करने में या आने वाली जनरेशन में जो 10th का रिजल्ट है उसको फ्रेम करने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आई एम एन इम्पोर्टेंट फैक्टर. ठीक है, वो तभी आपको रियलाइज होगा अगर इन्वेस्टिगेटर आपसे रिक्वेस्ट करता है, आपको बताता है कि आपका रिस्पॉन्स कितना ज्यादा जरूरी है इस इंक्वायरी के लिए. ठीक है, so request for return has to be there. Then better another point is that pre-testing pilot survey, this we discussed that day also. If sometimes we are not sure about the response of the questionnaire, हमें नहीं मालूम ये जो क्वेश्चनायर है इससे हमें ठीक इंफॉर्मेशन मिल पाएगी या नहीं, या जो रिस्पोंडेंट्स है वो हमें आंसर्स लिख के भेज देंगे कि नहीं. सो वी जस्ट वांट टू बी श्योर. तो हम क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चनायर बना लेते हैं या क्वेश्चनायर के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और उसको हम ट्रायल बेसिस पर रिस्पोंडेंट्स को पूछ लेते हैं. ठीक है, अगर हमें लगता है कि भाई उनको मुश्किल आ रही है इन क्वेश्चंस को आंसर करने में, then we try our best to reframe those questions. ठीक है, आपने ऐसे किया, आपने ट्रायल बेसिस पे 50 क्वेश्चनायर्स बच्चों को अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और आपने फिर उसको चेक किया तो आपने देखा नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 7 क्वेश्चन जो हैं वो सारे ऑलमोस्ट सारे रिस्पोंडेंट्स ने खाली छोड़ दिए हैं. तो आपने उनसे पूछा भाई ये क्यों नहीं फिलिंग किए, तो वो कहते हैं ये समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे करना है. यहाँ किसी ने कहा कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है, हमसे नहीं हुआ, हमारे पास नहीं टाइम लगा, एंड सो ऑन. देन it's an indicator that you have to reframe these questions. On the other hand, अगर आप सारे के सारे 5,000 लेट्स से आपका इंक्वायरी का वो है, स्फीयर ऑफ इंक्वायरी आपकी पॉपुलेशन 5,000 की है, तो आपने सब 5,000 के 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. जब आए आपके पास तो आपने देखा सब स्टूडेंट, सब इन्फॉर्मेंट्स ने ये आंसर्स नहीं दिए, तो अब कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, तो इसका सक्सेस इंश्योर करने के लिए आपको एक प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे करनी पड़ेगी. ठीक है, सो दीज आर द क्वालिटीज, सम ऑफ द क्वालिटीज. बाकी बेटे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर एक्सपीरियंस गेन करता जाता है उसको पता चलता जाता है कि वो एक अच्छे क्वेश्चन आयर की क्या क्या क्वालिटीज है, किस तरह का क्वेश्चन आयर उसको बनाना है. ठीक है, बट सर्टेनली these pointers if you keep in mind while
framing a questionnaire, it will go a long way in making a good questionnaire. Next topic, beta, types of questions. Now you have come to know about the qualities of a good questionnaire. Next thing again, which is very, very important before framing a questionnaire, is to know about the type of questions. Okay, I'm not discussing the questions which need to be asked. Of course, the questions which need to be asked, that depends upon the purpose of the inquiry. If the your inquiry relates to pandemic, then the questions have to be there regarding related to COVID only. If your inquiry is related to CBSE new education policy, questions are going to be related to that. If it's regarding the policy being followed by CBSE to give 10th result, board result, of course it's going to be related to that. Now what are the various types, किस तरह के questions, किस form के questions हमने पूछने हैं वो देखते हैं. बेटे बेसिकली 4 जितने भी हम क्वेश्चंस एक क्वेश्चनायर में डालेंगे ना, they can be of different types. One type is simple alternative question. Simple alternative questions बेटे वो होते हैं जिसमें आपको आंसर्स 2 alternatives given है, उनमें से एक alternative चूज करना है. So ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर सिर्फ 2 अल्टरनेटिव्स गिवन है, जिसमें से आपको एक पिक कर लेना है, ठीक है, वो होते हैं सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस. आर यू सेटिस्फाइड विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? यस और नो. आर यू सेटिस्फाइड विद द क्राइटेरिया फॉलोड बाय द सीबीएसई फॉर डिक्लेयरिंग 10th क्लास रिजल्ट? यस और नो. हैव यू बीन डिक्लेयर्ड पास और फेल? What's your result in 10th? Pass or fail? ठीक है. Do you own a car? Yes or no? ठीक है. तो yes or no, true or false, इस तरह के सिंपल ऑल्टरनेटिव्स आपको जब गिवन होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कहा जाता है सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस. Do you think new education policy is good, bad? ठीक है. तो you have to pick one. Respondent has to pick just one response from this, right? So this is these type of questions which need to be answered in alternative. 2 options are given, you have to select one. These type of questions are known as simple alternative questions, right? So next type of question पे आते हैं multiple choice questions. ये हम सबको पता है, MCQs जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. So when you are given options to a question, say 3, 4, 5 options you are given and you have to tick one. ठीक है. इस तरह के questions बेटे ऐसे में पूछे जा सकते हैं, जैसे what's your income in the group 0 to 10,000, 10,000 to 20,000, 20,000 to 30,000, 30,000 and above. अगर आपका इनकम ग्रुप पूछा गया है, अगर आपका ये इनकम ग्रुप है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे. इसी तरह आपके मार्क्स 10th में 0 to 50% के बीच में, 50 to 60 50 to 60, 60 to 80 and so on. ठीक है. How do you go to school? By foot, by school bus, by your own car, by bicycle, by motorcycle. ठीक है. इनमें से एक ऑप्शन आप टिक कर दीजिए. So these are known as multiple choice questions. ठीक है. Then with is specific information question. Specific information questions वो होते हैं जिनके हम कुछ options नहीं दे सकते हैं, right? हमें एक specific information चाहिए informant के बारे में जो सिर्फ वही प्रोवाइड कर सकता है, like your name, your address. In fact, questionnaire starts with these type of questions. आप कोई भी क्वेश्चनायर देख लीजिए. अब अगर आपको सीबीएसई इंक्वायरी भेजती है तो सबसे पहले वो क्या पूछेगी? स्टूडेंट्स नेम, ईयर इन विच पास्ड आउट, एडमिशन नंबर. ठीक है. इस तरह के क्वेश्चंस जो है
वो पूछे जाते हैं। नेम ऑफ द स्कूल, ऑल दीज आर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, आपका फॉर्म, आपने अभी 11th में एडमिशन ली, आपने एक फॉर्म फिल किया होगा, फॉर्म में सबसे पहले यही इंफॉर्मेशन आपने फिल की होगी। स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट्स ईमेल आईडी, स्टूडेंट्स फोन नंबर, father's name, father's occupation, father's phone number, mother's name, mother's occupation, mother's phone number, their income, right, their email id। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एड्रेस, ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो जनरली एवरी क्वेश्चन स्टार्ट्स विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट बेटे ओपन एंड क्वेश्चंस। लास्ट जो है वो है ओपन एंड क्वेश्चन होते हैं। इनमें हम एक क्वेश्चन पूछ देते हैं और नीचे स्पेस दे देते हैं, एंड द इन्फॉर्मेंट इज टू गिव देयर ओन व्यूज। ठीक है, कोई भी आर यू सेटिस्फाइड विद द क्राइटेरिया फॉलोड बाय CBSE? इफ नॉट, what according to you changes should be made in this policy, right? Are you satisfied with the current education system? जैसे एक क्वेश्चन लिख दिया, आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट एजुकेशन सिस्टम, यस और नो, ये हो गया सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन एंड बना सकते हैं कि इफ नॉट, व्हाट चेंजेस अकॉर्डिंग टू यू शुड बी देयर इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया ओपन एंड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपके वो व्यूज पूछ रहे हैं। व्यूज जो है वो एक ऑल्टरनेटिव में या MCQ में टिक नहीं लगाए जा सकते, सो उसके लिए आपको अपने व्यूज फ्रेम करके लिख के देने पड़ेंगे। तो एक अच्छा जो क्वेश्चन आयर होता है बेटे, दैट कंटेन्स मिक्स ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया, क्वेश्चन आयर जनरली स्टार्ट्स विद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। उसके बाद जो क्वेश्चंस के सिंपल ऑल्टरनेटिव पॉसिबल्स हैं, ठीक है, वो आप सिंपल ऑल्टरनेटिव रखिए, क्योंकि जितने आपके क्वेश्चन सिंपल ऑल्टरनेटिव और MCQ बेस्ड होंगे, उतना आपका चांस ज्यादा होगा कि रिस्पोंडेंट उसको फिलिंग करके वापस आपको भेज दे। ही विल शो इंटरेस्ट if least number of open end questions are there। ठीक है, but then you have to collect the data। ये नहीं माइंड में रखना कि कम से कम ओपन एंड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस के अगर आपको एक क्वेश्चन आयर का पर्पस ही इन्फॉर्मेंट का व्यू लेना है, तो ओपन एंड क्वेश्चंस आपको डालने ही पड़ेंगे। ठीक है, one questionnaire is given in your book, you are having your books with yourselves, just go through it। An example of an ideal questionnaire is given, in which firstly the objective of the questionnaire is given। एक आइडियल क्वेश्चनायर में सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव लिखना चाहिए कि हमने ये क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर बताया हुआ है बेटे, ऑब्जेक्टिव इज टू नो अबाउट द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 10+2 स्टूडेंट्स लिविंग इन द हॉस्टल्स। साथ में उसने आपको एक रिक्वेस्ट भी कर दी है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन दिस क्वेश्चनायर एंड रिटर्न एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। साथ में एक नोट लिख दिया है, that information will be kept strictly confidential। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन आप दोगे ये हम strictly confidential रखेंगे, and it will be used only for present investigation। present investigation के लिए भी यूज होगी, उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे स्टूडेंट्स नेम, इट्स अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। एज, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। फैकल्टी, जिसके आगे 3 ऑप्शंस लिखे हैं, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, सो एविडेंटली इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द नेम ऑफ स्कूल, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो गया। फादर्स नेम एंड एड्रेस, अगेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो गया। फादर्स ऑक्यूपेशन, इनकम, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो गया। मंथली इनकम रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट, आपकी इनकम फ्रॉम फैमिली कितनी आती है, फ्रॉम पर्सनल अर्निंग कितनी है, आपकी स्कॉलरशिप कितनी है, और अगर कोई सोर्स है तो वो। ठीक है, इसके आगे आप टोटल इसका जहां जहां से जो आती है वो लिख दीजिए। अगेन इट इज अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। फिर मंथली एक्सपेंडिचर्स ने पूछा है, कौन कौन सी जगह पे आप कितना कितना खर्चा करते हैं। फिर इज योर मंथली इनकम इनफ फॉर यू, यस और नो।
ये कौन सा क्वेश्चन है बेटे? यस और नो दिया है आपको, सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, ठीक है। सो इफ योर मंथली इनकम इज नॉट इनफ, हाउ डू यू प्रपोज टू इंक्रीज इट? अगर आपने कहा कि नहीं भी मेरे लिए ये सफिशिएंट नहीं है, तो उन बच्चों के लिए आगे वो पूछ रहा है, तो कैसे इंक्रीज करने का आप प्रपोज करते हो? इट इज एन ओपन एंड क्वेश्चन, ठीक है। कैन यू सेव एनीथिंग फ्रॉम योर मंथली इनकम? If yes, under which of the above noted heads of the expenditure can you save and how much? आप अपने क्या जो आपको इनकम है उसमें से कुछ सेव कर पाते हो? अगर कर पाते हो तो कौन से हेड से कर पाते हो और कितना कर पाते हो? ठीक है, इससे क्रॉस चेक भी हो जाएगा आपका, एंड दिस इज एन ओपन एंड क्वेश्चन, ठीक है। तो 12 क्वेश्चंस हैं इन ऑल इस क्वेश्चन आयर में, और ये एक सक्सेसफुल क्वेश्चन आयर है। इसमें उसने सारी क्वालिटीज को माइंड में रखते हुए हर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा है, और कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं आया, सिंपल लैंग्वेज है, क्रॉस वेरिफिकेशन भी है, रिक्वेस्ट भी कर दी, ऑब्जेक्टिव भी लिख दिया। सो ऑल इन ऑल इट इज अ गुड क्वेश्चन आयर, राइट।